Như cái mà ra một rồi. Thôi thì là tập tâm thì là How is it? để đi
Hi guys, welcome to the session. Please ask your friends if they want to join the session. We're gonna start the session in a few minutes. Hi guys. Okay, so videos, videos till now has been uploaded into the channel. ठीक है, मतलब जिसका भी ठीक है, videos has been uploaded to the session, to the channel. Let me share one second. Okay, give me a minute. Screen is visible, audio is clear. Screen is visible, audio is clear. Please tell. Everybody should be in the position to answer. Okay, let me share. So what you need to do is, see, where I'm sharing is, okay, just go to Google, okay, and type postmortem shala, okay, okay. Okay, this is the first website. Okay, this is the first website, and here comes what? Here comes Facebook, and then you must get YouTube channel. This is the YouTube channel. Okay, और यहाँ पर ना, okay, come to this playlist option. Okay, can you see this? This is, can you see this masterclass Angular and masterclass Java class? Okay, तो इसमें एक वीडियो पड़ी हुई है जो कल हम लोगों ने स्ट्रीम की थी, और इसके बाद एंगुलर का अभी तक का जितने भी सेशंस हुए हैं अप टू टिल नाउ 3 सेशंस, मतलब मनीष अगर आप पूछ रहे हो ना लास्ट सेशन कब चला है, तो लास्ट सेशन कल चला था, तो उसकी वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है. ठीक है,
यहीं के लाइव लेक्चर्स वहां पे मिलेंगे तुमको, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ओके, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? फाइन। सो ऑल द लेक्चर्स, सारे के सारे लेक्चर आपको ना इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट 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 कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम वेयर आई विल गेट द प्लेलिस्ट, 1 सेकेंड। इस पे आप जाओगे, ठीक है, व्यू फुल प्लेलिस्ट में जाओगे, ये देखो, ये प्लेलिस्ट का मैं लिंक आपको बोलो तो चैट पे दे देता हूँ, ठीक है, जिसको भी चाहिए वो मौज काट के पढ़ सकता है, ठीक है, बाबा का दरबार है, कोई भी पढ़ सकता है। ओके, एनी डाउट? DBMS, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, is that class required? Prisha, is that class required? If required, we'll take the session, no issues, but timing will be late night. But timing will be late night as in like around 1 o'clock or 2 o'clock. Okay, because morning schedule, my morning schedule are busy, शाम को ही चलेगा। Okay, okay, एक दिन पहले नहीं, you keep subscribe to the group, you will get every information over the group. हम ग्रुप में बहुत ज्यादा एक्टिव है, you can see, you would have seen that we are always available over the group, 24/7 it is available, no issues, fine. So let me start with the session. In the last क्या डिस्कशन हुआ था, कोई बताएगा मेरे को? लास्ट क्या हुआ था बताएगा मेरे को डिस्कशन करके? Okay, we'll plan for DBMS also, don't worry, maybe tomorrow, maybe we are going to start from tomorrow. Okay, fine, no issue. Okay, but make sure at least one people should join. Okay, make sure that at least one people should join, because you know, if one people will also join, I'll take the class, no issues. अकेले को तो नहीं पढ़ा सकते ना, at least there should be one person to join, fine. So लास्ट सेशन में डे 3 में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में, डिस्कशन किया था, राइट? कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होता है? कंपाइलेशन प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई गेस, करेक्ट? यस और नो? प्लीज रिपीट. Anybody who is attending the class daily should be in the position to answer this. कोई बताएगा? Please tell. हाँ, या फाइन. सो कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग फाइल बनाते हैं main.ts, एंड इन दिस main.ts को कंपाइल कैसे करते हैं? ठीक है, हम लोग main.ts फाइल बनाएंगे, मतलब कोई भी फाइल आप बना सकते हैं, p1.ts, एक्सटेंशन ts का होना चाहिए, ts बोले तो टाइपस्क्रिप्ट,
और इसको कंपाइल करने के लिए आपको क्या लिखना होता है, TSC फाइल का नाम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी फाइल का नाम है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी फाइल का नाम है क्या p1.ts, तो कंपाइल कैसे करेंगे? कंपाइल करने के लिए क्या करना होगा, कोई बताएगा? कंपाइल करने के लिए इन ऑर्डर टू कंपाइल, हाउ वी कैन कंपाइल दिस, इन ऑर्डर टू कंपाइल वी शुड राइट TSC p1.ts. okay, once you compile this file will be automatically converted to what, p1.js. okay, p1.js. एक बार p1.js पे आप आ गए, एवरीथिंग इज डन, ओके, एवरीथिंग इज डन, ओके गाइस, इज दैट ओके? ओके गाइस, नो इश्यूज, नो, ठीक है, नो, nobody is going to speak, हाँ, somebody, everybody is dumb. अरे गूंगे बहरे हो क्या भाई, बोलते क्यों नहीं? चैट इज ऑल योर्स। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। हमने ये TSC का फोल्डर बनाया था, बराबर, ये TSC का फोल्डर बनाया था हम लोगों ने। मैं क्या करता हूँ, इस TSC के फोल्डर को, लेट मी कॉपी दिस, ओके, लेट मी कॉपी एंड लेट मी गो टू day 4, लेट मी क्रिएट वन न्यू फोल्डर, Ctrl+10, day 4, inside this I will copy paste this code, ठीक है, and let me open this complete folder in CMD, और इसको मैं ओपन करूंगा विजुअल कोड स्टूडियो में, कोड डॉट टाइप कर, ठीक है। day 4, ठीक है भाई। अब आप क्या करो, क्या करेंगे बोलेगा कोई, व्हाट शॉट, क्या करेंगे अपन, day 4 में जाते हैं, और हम लोगों ने ये फाइल बनाई थी, बराबर, यूज स्ट्रिक्ट मोड के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था, आई होप सबको याद होगा, है कि नहीं? ठीक है, नाउ तो लास्ट सेशन में ये डिस्कशन हुआ था, ठीक है जी, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि माय नोट्स आर वेरी फेमस, ओके, माय नोट्स आर वेरी फेमस, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज, ओके, सो कीप दिस पॉइंट, ठीक है। चलो अब क्या करना है, day 4, ओके, तो अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि how TypeScript, okay, how, can you tell me what is the nature of TypeScript? कोई बताएगा नेचर, what is the nature of the TypeScript? Please tell. Anybody who is joining the session daily would be in the position to response. देखो भाई, जिसको ज्वाइन करना है, ठीक है, जिसको ज्वाइन करना है तो टाइम से ज्वाइन करो, इफ नॉट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग इफ यू कांट ज्वाइन, ठीक है, लाइव देखने का मजा ही कुछ अलग होता है, ठीक है, एटलीस्ट यू कैन आस्क द क्वेश्चन डेली, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट, प्लीज टेल, बोलो भाई, व्हाट इज द नेचर ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट, स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ द JS, व्हाट अबाउट अदर्स, हाँ, मिस्टर सिंह, नगीना, प्रियांशी, शिवेंद्र, शुभम, हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स,
Can you please tell what is the nature of the TypeScript? It is the strict version of JS, correct or not? It is the strict version of JS. सही है कि नहीं? अरे बोलो 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 बोलो. It is the strict version of JS. अरे बोल भाई. ए बोलो रे. Yes or no? It is the strict version of JS. बोल भाई. Correct or not? ठीक है. नाउ यू नो, आपको पता है अगर हम टाइपस्क्रिप्ट की बात ना करें फिलहाल, ठीक है, फिलहाल अगर हम टाइपस्क्रिप्ट की बात ना करें तो क्या हम लोग जेएस में, मतलब जितने लोग भी जेएस पढ़े हैं, ठीक है, जितने लोग भी जेएस पढ़े हैं कभी, ठीक है, तो जेएस मतलब आप किसी से भी पढ़े हो, नो मैटर, आप किसी से भी पढ़े हो, ठीक है, मुझे भी किसी ने पढ़ाया ही था, ठीक है, तो and I'm proud of my teachers, no issues, ठीक है, तो इसमें कहने वाली कोई बात नहीं भाई, कोई शर्म लाज है ही नहीं, ठीक है, तो माय टीचर्स वर वेरी गुड. सो अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में अगर मैं आपसे कहूं कि टाइप फ्लेक्सिबल होता है ना जावास्क्रिप्ट का, टाइप जावास्क्रिप्ट का जो टाइप हैंडल करने का जो तरीका होता है वो डायनेमिक होता है. डायनेमिक का मतलब ये है, एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं फिलहाल के तौर पे, अगर मैं एग्जांपल कहूं तो अभी आपने लिख दिया where x is equal to 10, ठीक है, अब इसका टाइप क्या है बोलो तो, अब इसका टाइप क्या है, नंबर है कि नहीं, ठीक है, आप इसमें बाद में ना स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हो, है कि नहीं, स्ट्रिंग असाइन कर दो, ठीक है, बुलियन असाइन कर दो. क्या ये कुछ कहेगा क्या, ये कुछ कहेगा क्या, कुछ कहेगा, प्लीज टेल. नो, नथिंग, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा. नो प्रॉब्लम एट ऑल. व्हाई नो प्रॉब्लम? कैन यू टेल मी व्हाई no problem? Can you tell me why? Because what is the nature? Because the nature of the JavaScript is what? Because the nature of JS is dynamic, correct? Dynamic. Sir, it is flexible in the nature. It is really flexible in the nature. Flexible in the nature. Yes or no? Because the nature of the JS is dynamic and it is really flexible in the nature. Correct or not? Bolo bhai, correct or not? Okay. Now, you know, I just want to give you one demo. मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया, JS की बात कर रहा हूँ, ठीक है, in JS. Don't worry, I'll show you this program in practically. आप फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा आपने ऐड, और इसमें आपने दो पैरामीटर पास कर दिए एक्स एंड वाई, ठीक है जी, आपने एक्स और वाई पास कर दिया, ठीक है, और आपने यहां से रिटर्न करा दिया क्या, एक्स प्लस वाई. कोई दिक्कत? कैन यू टेल मी व्हाट इज द टिपिकल एग्जांपल, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फंक्शन? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दिस फंक्शन? इसका कोई कैटेगरी होता है क्या, कैटेगरी ऑफ दिस फंक्शन? Can you please tell what is the classification of this function and the category of this function? Please tell. If you are not going to respond, I am going to bunk out the class. I'll kick everybody out from the session if you are not going to respond. You must be in the position to respond, everybody, man. Please tell. What is the classification of the function? What is the category of this function? Everybody, you know. Manish, can you tell me what is your classification? Trisha, can you tell me what is your classification? Yes or no? You know, in Hinduism, everybody is classified. Everybody is classified according to their works, according to your Varna system. Do you know this or not? सबको पता है कि नहीं पता? In Hinduism, we have the 4 classification: Brahmins, Kshatriyas,
Vaishyas, Sudras, they remember this. Correct? It is what? It is the classification. It is the classification, correct? So similarly, what is the classification of the function? What is the classification of the function? The classification of the function is, can you tell me, ये input ले रहा है कि नहीं ले रहा, बताओ. It is taking input or not? It is taking input or not? It is taking input or not? It is returning or not? It is returning or not? So if any function takes input and returns something, what it is called? What it is called? Function with argument and return type. Correct? यही तो हुआ, यही तो इसका क्लासिफिकेशन हुआ. अरे बोलो, यस और नो? यही तो है इसका क्लासिफिकेशन और कैटेगरी. भाई ये तो इसी कैटेगरी में रिटर्न, इसी कैटेगरी में घूम रहा है ना. Is it clear or not? Fine. Okay. So what should we do? What should we do? Can you tell me? What should we do? What should we do? Can you please tell? क्या कर सकते हैं अपन? What can we do? Please tell. Very simple. Very simple. See, क्या कर सकते हैं कि देखो, आपने सुना होगा फंक्शन का क्लासिफिकेशन होता है कौन कौन सा? नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न टाइप. सुना है? सुनो, इसी को आप बोल सकते हो नो इनपुट नो आउटपुट. नो इनपुट एंड नो आउटपुट. करेक्ट. सेकंड सर, with argument, no return type. Yes or no? No argument, no return type. What is the meaning of this? Can you please explain? What is the meaning of this? Can you please explain? No input and no output. With argument, no return type. Meaning, sir. Can you please tell what is the meaning? Sir, कुछ argument होगा, okay, some input, but no output. Some input, but no output. Correct. Third, with input. Okay, no argument. With return type. मतलब इनपुट कुछ नहीं होगा, बट आउटपुट मिलेगा. Last one. What is the last one? Please, can you tell? What is the last one? With argument, with return type. That is no input, with some input, some argument. Some input and some output. आपको भूल जाता है क्या ये? प्लीज टेल. आपको ये भूल जाता है क्या? प्लीज टेल. अगर आपको ये भूल जाता है, I will give you very good trick. See, always remember this trick. ये ट्रिक क्या है? See, always remember, you know, there are in the entire universe, there are 4 types of relationships. 4 types of relationships. ठीक है? In boy and girl. Okay. First one is very simple. First one is पहला सर. The first one is where boy is not serious
गर्ल ऑल्सो नॉट सीरियस, करेक्ट। दोनों अलग अलग घूम रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। सर सेकेंड, वेयर बॉय इज सीरियस बट गर्ल नॉट सीरियस। ओके, थर्ड वन, वेयर गर्ल इज सीरियस बॉय इज नॉट सीरियस। And what is the fourth one? Both are serious, correct? ऐसा हो सकता है? Can you tell me out of these four और कोई केस पॉसिबल है? Please tell. Out of these four, are there any case possible? No. Okay. Similarly, same thing. If you can understand this, it is relatable, correct or not? Relatable or not? Please tell. Both are serious. Relative will not be serious. Manish, we are not talking about back end people. We are just talking about boys and girls. We are not taking family into consideration. ठीक है? Clear? Possible? Okay. So तो अपन क्या कर सकते हैं? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और ये बात समझ में आ रही है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन, फंक्शन का अपना क्लासिफिकेशन और अपना कैटेगरी है, ठीक है? तो ये जो चार कैटेगरी है ये सेम इसी से रिलेटेबल है, ठीक है? अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, अब जरा आप एक चीज देखना, जरा आप एक नोटिस करना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या देखो, मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया, ध्यान से देखना। मैंने प्रोग्राम बनाया फंक्शन डॉट जेएस बनाया, मैंने ध्यान से देखना क्या बनाया, फंक्शन डॉट जेएस। और मैंने यहाँ पर लिख दिया, कौन सा मोड लिख रहा हूं मैं? यूज स्ट्रिक्ट। कैन यू अंडरस्टैंड? यूज स्ट्रिक्ट मोड लगा रहा हूं मैं, ठीक है? यूज स्ट्रिक्ट मोड लगा रहा हूं और मैंने लिखा फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या लिखा भैया बताओ? फंक्शन का नाम क्या है? ऐड फंक्शन। ओके, दिस इज व्हाट सर? दिस इज बॉडी। ओके, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन सर। कोई दिक्कत बताइए? दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। बोलो भाई, कोई दिक्कत? दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। एनी प्रॉब्लम विद दिस? अरे बोलो यार, एनी प्रॉब्लम विद दिस और नो? नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहां पर एक वेरिएबल दे दिया एक्स और वाई, ठीक है? ये काम करते हैं, नंबर ले लेते हैं NO1 और NO2, ठीक है जी? ठीक है, और यहां से मैं क्या कर लेता, मैं यहां से रिटर्न करा देता। क्या रिटर्न करा देता? रिटर्न कराता हूं मैं यहां से NO1 प्लस NO2। अरे बोल भाई। ओके।
हाँ जी, अब मुझे आप ये बता सकते हो NO1 और NO2 का टाइप क्या है, कोई बता सकता है? अरे चाचा लोग बताओ भाई। नगीना बोल भाई। देखो मुझे एक बात समझो, जरा एक बात समझने की कोशिश करना भाई लोग, मैं जो अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने क्या किया, इस फंक्शन की कॉलिंग कर देता हूं, ठीक है। कॉलिंग जब मैं करूंगा, जब मैं इस फंक्शन की कॉलिंग करूंगा तो एक चीज नोटिस करना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने किया ऐड फंक्शन कॉल, और ऐड फंक्शन में मैंने दे दिया 10,20, ठीक है। मैंने 10,20 दिया। अब एक चीज नोटिस किया तुमने, देखो एक चीज नोटिस करना, ठीक है, एक चीज नोटिस करना। अब अगर मैं इसे एक वेरिएबल में होल्ड कर लेता हूं, वेर रिजल्ट इज इक्वल टू करके, ठीक है जी, और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराता हूं, किससे, रिजल्ट से, और मैं क्या करता हूं ना, इसको एग्जीक्यूट करता हूं। एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, वही तरीका, मुझे जाना होगा cd डे 4 के अंदर, और फिर कौन सा फंक्शन, फिर जाना होगा tsc फोल्डर के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास dir टाइप करूंगा तो देखो मेरे पास कौन सा है, फंक्शन डॉट जेएस, ठीक है। तो नोड फंक्शन डॉट जेएस, देखो आउटपुट क्या आ रहा, हीरो लो, आउटपुट क्या आ रहा, 30 आ रहा। अरे आउटपुट 30 आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ, अरे आउटपुट 30 आ रहा, हाँ या ना, ठीक है जी, 30 आ रहा आउटपुट, ठीक है। अभी तो इसने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, अभी तो इसको इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 and 20, अब देखो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, कॉनकैटिनेट, ठीक है, दोनों चिपक गए आपस में, दोनों को चिपकने का, चिपकने की ये जो प्रॉपर्टी होती है, चिपकने की ये जो प्रॉपर्टी होता है, इसको क्या बोलते हैं, कनकैटिनेशन, ठीक है। चिपकने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कनकैटिनेशन, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। व्हेन स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, व्हाट इट बिकम्स, कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन वर्ड आपने कहीं सुना है, कोई बताएगा, कनकैटिनेशन कभी आपने सुना है, कनकैटिनेशन कहां सुना है, मनु बताओ तो, कहां सुना है। अदर देन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अलावा कहीं पर सुना है, अदर देन, बोलो भाई। हाँ देखो मैं आपको दिखाता हूं, याद करो शायद याद आ जाए। मीथेन सुना है आपने, मीथेन, मीथेन सुना है किसी ने, अरे मीथेन सुना है, हाँ क्या होता है फॉर्मूला जरा बताओ तो भाई, CH4 करेक्ट, यही होता है, CH4 ही होता है ना, ठीक है। तो CH4 का बॉन्ड कैसे बनाते हैं यार, कोई बताएगा, C लिखते हैं अपन, और इसके बाद क्या करते, ये लगाते, ये लगाते, 4 बॉन्ड लगाते है कि नहीं, 4 बॉन्ड लगाते, लगाते ना, और यहां क्या लगा देते, H, अरे बोलो क्या लगा देते, H, हाँ या ना,
ठीक है, अब मुझे आपको ये बात पता होगा कि मैं कार्बन की कितनी बड़ी भी चेन ले लूं, जैसे कार्बन की मैं कोई बहुत बड़ी चेन लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कोई बहुत बड़ी चेन ले लेता हूं, कोई बहुत बड़ी चेन बताओ, कोई सबसे बड़ी चेन, एक चेन ले लेते हैं C5, करेक्ट, सही है, C12H22O11, ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दिया मैडम ने, है कि नहीं, है कि नहीं? ये यार, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू शुगर, यस और नो? ठीक है मानू, तो देखो देखो, अब एक बात बताओ, ये जो बना है, मेरी बात सुनना, ये जो बना है, आपने ये चीज सुना होगा कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, CH3 CH2 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 ऐसा लिख सकते हो कंटिन्यूएशन में? अरे बोलो, CH2 डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा CH3 समथिंग, बोलो CHO, ऐसा कुछ बोलो, अरे बोलो, लिख सकते हैं ना? अरे बाकी लोग क्या सांप सूंघ गया क्या, बोल का नहीं रहे हो हैं? तो कार्बन में आपने ये जो देखा होगा कि CH2 कई बार रिपीट हो रहा है ना, और कार्बन में ही ये प्रॉपर्टी होती है, आपने सुना होगा कार्बन लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, यस और नो? कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी टू फॉर्म चेन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या करता है कि कार्बन किसी को भी साथ में चिपका सकता है कि नहीं? और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कार्बन की चिपकाने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कनकैटिनेशन, करेक्ट, कनकैटिनेशन। तो ये कनकैटिनेशन जो वर्ड है, ये जावा में भी इसी का मतलब यही है, ठीक है, जावा में, जावा स्क्रिप्ट में यहां पर भी मतलब यही है कि 10 ए की वैल्यू है, मतलब नंबर 1 की वैल्यू है, और 20 नंबर 2 की वैल्यू है, और दोनों को क्या कर दो, कनकैटिनेट कर दो, ठीक है। और एक चीज नोटिस करो, एक कमाल की चीज बताऊं आपको, यहां प्लस दिख रहा है, प्लस, अच्छा कभी आपने ये चीज नोटिस की है कि ये प्लस के सिंबल के साथ ही क्यों कनकैटिनेशन होता है, कभी नोटिस किया, किसी ने सुना ये बात, कभी किसी ने ये बात सोची कि प्लस के सिंबल के साथ ही कनकैटिनेशन क्यों होता है, माइनस के साथ क्यों नहीं होता, कोई बता सकता है, बोलो त्रिषा, मनीष, ये क्वेश्चन मुझे बताओ कि प्लस वाले सिंबल के साथ ही क्यों कनकैटिनेशन की प्रॉपर्टी लगती है, माइनस वाले सिंबल के साथ क्यों नहीं लग जाती कनकैटिनेशन की प्रॉपर्टी, बताओ। There is a hidden secret behind this. Do you want to know? If you want to know, I can tell. ना 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 ना, अगर आप बोलो तो मैं बता सकता हूं, बताओ। देखो 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 देखो, इधर देखो, जरा ध्यान से इस फोटो को देखो, ये है, ठीक है, एक बात देखो, क्या आपको यहां पर कार्बन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, कार्बन, ये कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं कि नहीं, अरे कार्बन में 4 बॉन्ड्स होते हैं कि नहीं, तो ये जो प्लस है ना, दिस प्लस, इस प्लस को आप ऐसा मानो कि ये कार्बन बॉन्ड है, नहीं समझे, कैन यू फील, इस प्लस को आप कार्बन की तरह फील कर सकते हैं, इसके जैसा, इसके जैसा फील कर सकते हैं, और बताओ कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कनकैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कनकैटिनेशन की, इसी वजह से प्लस इज टेकन एज व्हाट, कनकैटिनेशन प्रॉपर्टी, बात समझ में आई? दिस इज द केस स्टडी सर,
दिस इज द केस स्टडी, हिडन सीक्रेट अबाउट प्लस सिंबल। बात समझ में आई? ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है जी, चलो। तो मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना यार। अब ये बताओ, ये 10 है और ये 20 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको पता है अगर ये टाइपस्क्रिप्ट होता ना, अगर ये टाइपस्क्रिप्ट होता, और अगर ये टाइपस्क्रिप्ट होता, मेरी बात समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये टाइपस्क्रिप्ट होता, ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर ये टाइप, अच्छा देख रहा हूं, एक बात नोटिस करना, मैंने इसके आगे लगा दिया प्लस और इसके आगे लगा दिया प्लस। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर राइट नाउ? अब कैन यू सी दिस? ओ भाई लोग, अब 30 आ गया यार, स्ट्रिंग होने के बावजूद क्या आ गया? 30। अरे बोलो, स्ट्रिंग होने के बावजूद 30 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, दिस इज द मैजिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या, देखो एक्चुअली हुआ क्या, जब ये प्लस आया ना, तो जब ये प्लस आया तो ये इसका बाय डिफॉल्ट टाइप क्या था? स्ट्रिंग। और इसका भी बाय डिफॉल्ट टाइप क्या था? स्ट्रिंग। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर प्लस लगाया और ये प्लस यहां गया और इसने देखा कि यार प्लस, ये नंबर तो पॉजिटिव हो गया। देखो अब ये 10 स्ट्रिंग नहीं हो गया, अब ये बन गया पॉजिटिव 10 और ये बन गया पॉजिटिव 20। अब भाई पॉजिटिव 10 और पॉजिटिव 20 स्ट्रिंग में तो कोई मतलब नहीं है। क्या पॉजिटिव स्ट्रिंग 10 हो सकती है क्या? पॉजिटिव स्ट्रिंग 20 हो सकती है क्या? नॉट पॉसिबल, है कि नहीं? पॉजिटिव स्ट्रिंग का मतलब कुछ नहीं होता। तो क्योंकि यहां पर चांस है कि 10 को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? नंबर में, तो जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, इवन भले ही इवन दो ये स्ट्रिंग में था। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं? अरे बोलो, ये बात समझ में आई क्या? सबको? अगर -20 कर दिया जाए ये, आप बताओ क्या होगा? आप बताओ। इट वोंट बी एन एरर मैन, automatically this will be converted to -20. Okay, automatically this will be converted to the numeric -20, and this will converted to what? Positive 10. Okay, so -20 plus of 10, what will be the answer? Minus of 20, I guess. Correct, -10 है ना? -20 minus of 10, what will be the answer? -10, correct. अरे बोलो, मेरा ये कहना है कि आपको ये बात सोचना चाहिए कि भाई अभी तक ये स्ट्रिंग था, ठीक है, ये स्ट्रिंग था, ये भी स्ट्रिंग था। जैसे ही मैंने इसके आगे प्लस लगा दिया और इसके आगे प्लस लगा दिया, तो देखो आप इमेजिन करो ना यार, अगर ये स्ट्रिंग होता, जैसे मैंने यहाँ से प्लस प्लस हटा दिया, मेरी बात समझना है यार जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है जी, तो आप देखोगे आंसर क्या आएगा। देखो स्ट्रिंग आ रहा है, कॉन्कैटिनेट हो रहा है ना, लेकिन जैसे ही आपने इसके आगे प्लस लगा दिया, अब जावास्क्रिप्ट ने इसको स्ट्रिंग की तरह नंबर ट्रीट कर लिया। क्यों? क्योंकि देखो यार, पॉजिटिव स्ट्रिंग 10 का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव स्ट्रिंग 20 का कोई मतलब नहीं है, करेक्ट? तो क्योंकि ये स्ट्रिंग एक पॉजिटिव स्ट्रिंग है और इसके अंदर का जो कंटेंट है वो 10 है, तो जावास्क्रिप्ट फ्लेक्सिबल है। क्या कह रही है सर? अगर ओनली 10 के आगे प्लस लगाएं, अच्छा
मतलब आप ये कह रहे हो ये ऐसा कुछ, ऐसे केस में आप बताओ क्या होगा। अब यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो मैं दिखाता हूं, देखो देखो क्या हो गया, कंकैटिनेट हो गया ना, है ना। अच्छा, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द सिचुएशन, नाउ व्हाट विल बी द सिचुएशन, कंकैटिनेट हो जाएगा, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, वो वाली बात होती है ना, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब दोनों में से कोई भी, देखो भाई, अगर दोनों लोग पॉजिटिव साइन के साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो भले ही इनका टाइप स्ट्रिंग क्यों ना हो, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इनके टाइप को कन्वर्ट कर देगी किसमें, नंबर्स में। लेकिन दोनों में से कोई अगर एक भी राजी नहीं है, ठीक है, फिर तो भसड़ मचेगी मचेगी। तब उस केस में टाइप जो है वो स्ट्रिंग को ही रिफ्लेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो, बात समझ में आई? अभी कंसेप्ट ये नहीं है, अभी ये कंसेप्ट ये नहीं, कंसेप्ट में समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, अब एक बात बताओ, अब जरा लॉजिक लगाना, जरा एक लॉजिक लगाओ। अगर मैंने यहां से स्ट्रिंग पास कर दी, भाई लोग जरा नोटिस कर दो, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है बताओ। अबे फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है ऐड, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब फंक्शन का नाम ऐड है, और ये हमको आउटपुट कैसा दे रहा है, कनकैटिनेट करके दे रहा है कि ऐड करके दे रहा है, बताओ भाई। अगर मैं फंक्शन ये बनाता, मेरी बात समझो, अगर मैं फंक्शन का नाम बनाता कॉनकैटिनेट, ठीक है जी, और मैं यहां पर देता x कॉमा वाई, मेरी बात समझो, और मैं यहां कर देता x कॉमा वाई, ठीक है जी, और अब मैं क्या करता, इस फंक्शन की कॉलिंग करता, और इसको कर देता रिजल्ट 1, इसको कर देता रिजल्ट 2, ठीक है, और मैं ये देता ऐड इक्वल टू रिजल्ट 1, और यहां मैं लिखता कॉन कॉनकैटिनेट कॉमा, गलत जगह टाइप कर दिया, रिजल्ट 2, ठीक है जी, रिजल्ट कॉपी किया, रिजल्ट 2 यहाँ पर, ठीक है जी, और इस फंक्शन का नाम दिया क्या, कॉनकैटिनेट। अब देखो, अब आप अगर इस फंक्शन की बात करोगे ना, तो यार हाँ, दिमाग समझ में आता है कि यार देखो, कॉनकैटिनेट फंक्शन चल रहा है और 10 और 20 को कॉनकैटिनेट कर रहा है, तो ये बताओ, ये ठीक है, ये लीगल है, ये वैलिड है भाई। लेकिन ये तो इनवैलिड है ना यार, ये तो इनवैलिड है ना, क्योंकि नाम वो जैसे कहते हैं ना, काम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है, नाम राम जैसा काम पापी जैसा। तो कहने का मतलब भाई इसका नाम कैसा है, भाई देखो, यहां पर स्ट्रिंग दिया गया, मेरी बात समझो भाई मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ स्ट्रिंग दिया गया, यहाँ स्ट्रिंग दिया गया, कॉनकैटिनेट हो जाएगा, कॉनकैटिनेट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है, कनकैटिनेशन, क्योंकि फंक्शन का नाम क्या है, अरे बोलो यार, कनकैटिनेशन, बोलो हाँ या ना, कनकैटिनेशन। तो भाई जब फंक्शन का नाम कनकैटिनेशन है और हम स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, तो कनकैटिनेट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई ये ऐड फंक्शन है और ये कनकैटिनेट कर रहा है, ये तो बवाल है भाई, है कि नहीं। ये बेसिकली क्या होना चाहिए बताओ, अगर ये ऐड फंक्शन है, तो इससे बदले में क्या लेना चाहिए, ओनली नंबर्स लेना चाहिए, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो भाई, ओनली नंबर्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, इसको स्ट्रिंग तो लेने ही नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि भाई देखो, मेरी बात समझो जो मैं बता रहा हूं भाई, कनकैटिनेशन फंक्शन का काम है कनकैटिनेट करना, सही है कि गलत, पहले ही बताओ। कनकैटिनेशन फंक्शन का काम है कॉन्कैटिनेट करना, ठीक है, ये बात सही है। कनकैटिनेट कर रहा है, ये वैलिड है।
लेकिन जो एडिशन फंक्शन है वो कंकैटिनेट कर रहा है, वो तो गड़बड़ है ना, है कि नहीं? तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि अगर हम इसको स्ट्रिंग दें तो ये सीधा सीधा एरर बोल दे कि भैया ऐसा है, मेरा नाम ऐड फंक्शन है और मैं सिर्फ नंबर लेता हूं, है कि नहीं? मैं सिर्फ नंबर लेता हूं। अगर हम इसके टाइप को रेस्ट्रिक्ट कर दे तो बताओ बिहेवियर सही होगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ। अगर मैं इसका टाइप फिक्स कर दूं किसके लिए, अगर मैं इसका टाइप फिक्स कर दूं किसके लिए, नंबर के लिए, तो बताओ इसका बिहेवियर सही हो जाएगा कि नहीं सही हो जाएगा? बताओ बताओ, सही हो जाएगा ना? तो इस चीज को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे करेंगे? बहुत आसान है, हम लोग लिख सकते हैं यदि टाइप ऑफ किसका, टाइप ऑफ no1 इज इक्वल क्या, क्या नंबर है। अगर अगर no1 का टाइप नंबर है, ठीक है, अगर no1 का टाइप नंबर है एंड टाइप ऑफ किसका, no2, मेरी बात समझो, मैंने लिखा क्या है भाई, मैंने लिखा क्या है, देखो मैंने लिखा क्या है, जरा समझो। इक्वल क्या लिखा है, नंबर है। अगर दोनों का टाइप नंबर है, एल्स और कोई टाइप आ रहा है, अगर और कोई टाइप आ रहा है तो क्या होना चाहिए, और कोई टाइप आ रहा है तो क्या होना चाहिए, बताओ? हाँ, बताओ तो क्या होना चाहिए, एरर आनी चाहिए। और एरर क्या आनी चाहिए, एरर आनी चाहिए कैसे, हम लिख देंगे कंसोल डॉट एरर, और कंसोल डॉट एरर में क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आर्ग्यूमेंट सप्लाइड डज नॉट मैच द नंबर टाइप, ठीक है, आर्ग्यूमेंट सप्लाइड डज नॉट मैच द नंबर टाइप। सही है भाई साहब? अरे बोलो, करेक्ट, सही है। आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग सप्लाई डज नॉट मैच द नंबर टाइप, ठीक है जी, करेक्ट और नॉट करेक्ट, या ये सब हटा दो, सीधे सीधे कह दो इनवैलिड टाइप, मसला ही खत्म। बताओ, तो बताओ आप इफ और एल्स से मैनेज कर लिया कि नहीं मैनेज कर लिया, बताओ भैया, इफ एंड एल्स से मैनेज कर लिया कि नहीं मैनेज कर लिया, चेक करें, चेक करें, बताओ। हाँ, चेक करें, आओ चेक करते हैं। आउटपुट आया, आउटपुट आया, लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग में दे दूंगा, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में दे दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग में दे दूंगा तो सी, देखो तुरंत आया आंसर, इनवैलिड टाइप, इनवैलिड टाइप आया कि नहीं आया, इनवैलिड टाइप आया। और यहां से मैं रिटर्न करा सकता हूं क्या, रिटर्न करा दूंगा 0, ठीक है। तो देखो ऐड की वैल्यू 0 आई और एरर क्या आ गई, इनवैलिड टाइप, बोलो हाँ या ना, सही बात है, इनवैलिड टाइप आ गया, सही बात है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो बताओ, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपको वैलिडेशन लगाना है, टाइप वैलिडेशन लगाना है, तो बताओ आपको एक्स्ट्रा इफ एंड एल्स की कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि नहीं लिखनी पड़ेगी? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन जावास्क्रिप्ट, इन जावास्क्रिप्ट we have to write extra logic using if and else. Also we need to check, also we need to check type, check type of each argument to perform operation, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब देखो मैं आपको एक कमाल की चीज दिखाऊं, यही कोड टाइप स्क्रिप्ट में 2 लाइन में हो जाएगा, बताओ करके दिखाऊं, यही कोड, यही कोड टाइप स्क्रिप्ट में 2 लाइन में हो जाएगा, बोलो करके दिखाऊं,
कोई इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, अब आपको समझ में आएगा। मैंने फंक्शन डॉट जेएस को बंद किया और मैंने टीएससी के अंदर एक फाइल बनाई फंक्शन डॉट टीएस। टीएस का मतलब टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर देखना क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा लिखूंगा। मैंने एक फंक्शन बनाया, ध्यान से देखना भाई, फंक्शन बनाया ऐड, ठीक है जी, ऐड बनाया और ऐड के अंदर मैंने लिख दिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और रिटर्न कर दिया एक्स प्लस वाई, ठीक है। और एक फंक्शन बनाया कॉनकैटिनेट, यहां पे लिख दिया एक्स कॉमा वाई और यहां भी रिटर्न कर दिया एक्स प्लस वाई। दोनों एक जैसे फंक्शन है, बोलो हाँ या दोनों एक जैसे फंक्शन है। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने एक में लिखा ऐड इक्वल टू, मैंने लिखा एडिशन ऑपरेशन इक्वल टू, क्या कॉल कर दिया, ऐड फंक्शन, सेमीकोलन, कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया और मैंने यहां लिख दिया कॉनकैटिनेट, ठीक है जी। अब देखो इस फंक्शन को कॉल करना है कॉनकैटिनेट। अब बताओ इसमें कैसे पास करना है। अब देखो मेरी बात देखना, अब आप देखोगे टाइपस्क्रिप्ट में आप कोड लिख रहे हो तो आपने लिखा 10,20 और यहां पर आपने पास किया 10,20, ठीक है, 10,20। अब यहां पर कॉन्कैटिनेट कराना है तो मैं इसमें किसमें पास कर दूंगा भैया, बोलो किसमें पास कर दूंगा, स्ट्रिंग में, अरे बोलो स्ट्रिंग में। और इसको ऐड कराना है तो मैं कैसे पास कर दूंगा, नंबर्स में, ठीक है जी। अब बताओ इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो फंक्शन डॉट जेएस है ना, तो फंक्शन डॉट जेएस को मैं रीनेम कर देता हूं और मैं लिख देता हूं टाइप ऐसा, ठीक है, जानबूझ के, ताकि क्योंकि अभी हम इसको कंपाइल करेंगे ना तो फंक्शन डॉट जेएस नाम से फाइल बनेगी, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ओ भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, मेरी बात समझो, ठीक है। अब जरा देखो मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, मैंने लिखा टीएससी फंक्शन डॉट टीएक्स, कंपाइल किया, कंपाइल हो गई, नोड फंक्शन डॉट जेएस, ये देखो काम कर रहा है कि नहीं, बढ़िया काम कर रहा, बढ़िया काम कर रहा। लेकिन अभी आप तुरंत बोल दोगे अरे सर गोली काहे दे रहे हो, इसको भी स्ट्रिंग में पास करो, इसको भी स्ट्रिंग में पास करो सर, इसको भी स्ट्रिंग में पास करो, देखना अभी गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसको भी स्ट्रिंग में पास करो देखना। ये देखो सर कंपाइल किया, रुको, कंपाइल किया, ये देखो कॉन्कैटिनेट कर दिया। आप कहोगे सर टाइपस्क्रिप्ट का भी तो बिहेवियर जावास्क्रिप्ट जैसा है, बोलो, आप बोलोगे सर टाइपस्क्रिप्ट का बिहेवियर भी तो जावास्क्रिप्ट जैसा है, सही बात है कि नहीं सही बात है, ठीक है, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सी अब देखो जादू, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो x है ना भाई वो नंबर होगा, मैंने क्या लिखा कि x है वो नंबर होगा और y जो है वो क्या होगा, नंबर होगा। और कॉन्कैटिनेट वाले में लिख दिया कि x जो होगा वो इस केस में स्ट्रिंग होगा और यहां पर जो y होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। बात समझ में आई। अब आप कुछ भी कर लो, अब आप कुछ भी कर लो, अब मौत है देखना, तो कंपाइल किया तुरंत एरर आ गई, देखो तुरंत एरर आ गई। क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप नंबर। देखो तुरंत एरर दे दी कि नहीं दे दी, ऐड में बोलो, दे दिया एरर, दे दिया एरर। अब ये कह रहा है कि भाई अगर ऐड में नंबर टाइप दिए हो, और कैसे पता चला, देखो कैसे पता चला, लाइन नंबर 9 पे बोल रहा है, लाइन नंबर 9 पे जाओ रे, ये देखो लाइन नंबर 9 पे कह रहा है कि अगर एक्स नंबर टाइप का है तो तुम्हारा हिम्मत कैसे होगा। और देखो यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है कि एक्स नंबर है, तुमने स्ट्रिंग पास किया है, सही बात है कि नहीं भाई, बोलो। तो मैंने जैसे ही इसको इसमें कन्वर्ट किया, अब कंपाइलेशन नहीं, अब कंपाइलेशन एरर हट जाएगी, देखते हैं, हट गई, नोड फंक्शन डॉट जेएस। सर
चल गया कि नहीं चल गया? बताओ विच इज बेस्ट। अब समझ में आया? अब समझ में आया? बताओ टाइपस्क्रिप्ट अच्छी लैंग्वेज है कि नहीं? बताओ इसमें इफ एल्स का लॉजिक लिखना पड़ा, इसमें इसमें इफ एल्स वाला ड्रामा लिखना पड़ा, लेकिन इसमें इफ एल्स वाला कोई भी ड्रामा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आया? देखो मैंने दोनों, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ये पढ़ा देता, मेरी बात समझो, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट ये पढ़ा देता, लेकिन आपको फिर प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने पहले ये कराया, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ये बनवाया, प्रॉब्लम समझाई, और इसके बाद ये बताया कि कैसे टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइल्ड होने का नेचर बेटर है। बताओ टाइप स्क्रिप्ट इज गुड और नॉट? नो एक्स्ट्रा लॉजिक, नो एक्स्ट्रा ड्रामा, मतलब कंपाइल ही नहीं होने देगा, देख रहे हो? करेक्ट और नॉट? ओके ओके, सो in TypeScript, okay, in TypeScript type can be declared before compilation and TSC मतलब जो TypeScript का कंपाइलर है, it will take care that no invalid type is supplied। ओके भाई, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? बताओ। ठीक है जी, इजी लगी अभी फिलहाल? बताओ इजी लग रही है अभी तक? अभी तक इजी लग रही है कि नहीं लग रही? बताओ। ठीक है जी, तो ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आया हो। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया है। कल के सेशन में मैं आई टेल यू, ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम ऑल द डेटा टाइप्स। ठीक है, ऑल द डेटा टाइप्स ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के सारे डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिक्ट, बुलियन, जो भी होते हैं सारे के सारे। ठीक है, ओके, एंड प्लीज क्लास बस मत करें। ठीक है, ये क्लास प्रमोशन के लिए नहीं है, ठीक है, ये आपका भला हो इसलिए कराई जा रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगर अगर आप रियली इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो प्लीज प्रैक्टिस करके आइए घर से। ठीक है, वीडियोस रिकॉर्ड करके मैं चैनल पे डालता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, किसी भी समस्या की वजह से, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते। कितने लोग कहते हैं डीबीएमएस की क्लास चाहिए उनको? कितने लोग कहते हैं कि सर डीबीएमएस की क्लास चला दो सर? ठीक है, कैन एनीबॉडी टेल हाउ मेनी पीपल वांट फॉर डीबीएमएस क्लास टू गो ऑन? डोंट वरी मनीष, विल परफॉर्म क्रड, डोंट वरी। फाइन, ओके। But the timing is very different, no? Around 1 o'clock, 1 to 3. Okay, 2 hours class, 2 hours session will be there. DBMS from 1 o'clock to 3 o'clock. Okay. टाइमिंग ऐसी रहेगी भाई साहब। ठीक है, टाइमिंग ऐसी ही रहेगी। ठीक है, आई एम मेकिंग दिस टाइम ताकि आप दिन में कुछ भी करो, बट मेक श्योर ये टाइम आप पढ़ो। ठीक है, फाइन, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई विल शेयर दिस पीडीएफ, ओके, डोंट वरी, थैंक यू, लेट्स मीट इन द सेकंड सेशन
of the Java class. Okay, let's meet in the Java session class. Okay. Thank you. Thanks a lot.